इस कंट्री का डिजायर क्या है? भाई आप सबको साथ लेकर चलेंगे, डाइवर्सिटीज का देश है जी। क्या परसोना जाता है? आज तो स्थिति फिर थी कि अगर कांग्रेस के या यूपीए के परफॉर्मेंस से लोगों में नाराजगी है तो इन सब लोगों को एक आप जुबान देते, उनको गोलबंद करते, उन इश्यूज से भटकने नहीं। मैं इस पॉइंट पे आऊंगा, मगर ये सवाल पे मैं थोड़ा और डिटेल में जाना चाहता हूं। जो कहा जाता है नीतीश जी दैट देयर इज अ बोगी ऑफ सेक्युलरिज्म, द चार्ज इज that there is a bogey of secularism, and I want you to answer the straight questions. Like you have been saying that the Prime Minister should be a secular person. Agreed. But the charge against you is that your own position on secularism has been one filled with contradictions, which you are saying you have made adjustments to that, or you have compromised on that at the state level because you wanted some political alliance to come through. Let me ask you this. Let me ask. कभी कोई compromise नहीं किया। तो मैं आपको 2-3 एग्जांपल हमारे जो प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट में पिछले 7.5 years के, डिस्पाइट इन अलायंस, हमारे जो प्रोग्राम है वो इस बात को बताते हैं जी। बट आई वांट और हमने सोसाइटी के सभी सेगमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम किया। यस। तो बट इसलिए हम लोगों ने बेसिक इश्यूज पर कॉम्प्रोमाइज बट आई वांट टू आस्क यू ऑन दिस इशू 3 or 4 examples, and Nitish ji, I want you to frankly tell me your response on this. Four cases I'll give you. 4 cases. The first case which you are already very angry about, which is the 2003 video. Now, I'm not at all angry. Okay, no, there is a speech made by you while inaugurating a railway project in Kutch in 2003. Nitish Kumar says, and I quote, "What happened in 2002 was a blot, but it is not good if we remember just that and forget other things that are happening. I congratulate Narendra Bhai. Gujarat's development is helpful for India, and a different image about the state and about Narendra Bhai has been created outside the state." Now you are saying that when you are at a government event you have to praise people who are there, but this is a political comment. This is not a political comment and not a minister to chief minister comment. आजकल इस बात को लेकर के हमारे पुराने मित्र बहुत कर रहे हैं। 2003 की बात है। मैं एक बात कहता हूं कि तो भाई हमारे ये विचार थे जी। तो फिर 2005 में बिहार में 2 इलेक्शन हुए, वन इन फरवरी, अदर इन अक्टूबर नवंबर जी। क्यों नहीं बुलाया आपने? मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो आज ये इसकी सीडी, इसका जो कुछ भी स्पीच जी और बहुत ही प्रिजर्व करके रखा है, कम से कम उसी समय से कुछ समझ रहे तो रखेंगे because you are the biggest driver. कब की थी और क्या कहा है अब? अच्छा, और एक है नहीं, और ये समझ लीजिए 2009 में पार्लियामेंट का इलेक्शन होता जी। 2010 में फिर असेंबली का इलेक्शन होता जी। तो क्यों नहीं बुलाया गया? 2002 में 2 और कमेंट्स है मेरे पास। आई सेड 4 एग्जांपल्स। पहले का अच्छा, सेकंड एग्जांपल, December 2002, Nitish Kumar is congratulating Narendra Modi's victory in the state assembly elections. This is another quote. Congratulating the BJP, its allies at the center refuted suggestions of any polarization of votes in Gujarat and said it's a verdict against the Congress. Nitish Kumar said, senior Samta Party leader and railway minister says, claiming there is no polarization of votes between Hindus and Muslims, he said, people are secular and they do not like fundamentalists. The people of Gujarat were aggrieved with the kind of image painted outside the state and hence reacted in this way. This is exactly what Modi says. देखिए साहब, हमको ये सारे स्टेटमेंट इन दिनों सर्कुलेट किए जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इनका। क्यों? और 2005 में मैं एक ही बात कहता हूं, हमारे बिहार में जो इलेक्शंस हुए 2004 में भी जी, फिर 2005 में 2 इलेक्शन हुए जी। कहाँ आए? तो 2005 का और एक 2005 के 2 इलेक्शन हुए जी। 2009 में पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, 2010 में असेंबली का इलेक्शन हुआ। इसलिए देखिए इन बातों का कोई मतलब नहीं। एक थर्ड एग्जाम्पल और आप बता दें आपको 2002 में ऑफ कोर्स उस समय हमारी पार्टी समता पार्टी और ये जनता दल ये का उनका 2 आया, जेडीयू का। कांग्रेस और बीजेपी के अलावे
एक अकेली पार्टी जेडीयू थी, और फिर जब हम लोगों का मर्जर हुआ तो 2007 में भी लड़े। गुजरात में हम लोगों का तो कोई अलायंस नहीं था हम लोगों की पार्टी का। 2012 में भी अभी चुनाव हुआ है, जेडीयू के अपने बलबूते पर ये जो आप कह रहे हैं नीतीश जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सब जो दिए जा रहे हैं, मैं आपको कन्विंस कैसे करूं कि मुझे किसी ने ये सब दिया नहीं है, ना ही भारतीय जनता पार्टी ने, ना मोदी के ऑफिसर ने। मैं ये सब देख रहा हूं और मैं ये, जैसे आप कह रहे हैं, आपका जो पोजीशन है, मेरा सिर्फ एक सवाल है, सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु सिर्फ ये है, नीतीश कुमार इज रेजिंग द इशू ऑफ सेक्युलरिज्म, हैज ही बीन कंसिस्टेंट थ्रू आउट। इसमें तीसरा मेरा 2005 में आपने कुछ कहा है, उसका कोट देना चाहता हूं। आपने कहा जनवरी 2005, इट इज अ पॉलिटिकल स्टंट, इन अदर वर्ड्स रेजिंग ऑफ द गुजरात इशू, बट दे, द सेंटर, शुड नो दैट दे कैनॉट टेक एडवांटेज of the Gujarat riots again and again and again. Nitish Kumar told reporters when his reaction was sought on the report which was submitted to the Railway Board Chairman R.K. Singh. Now therefore, you were saying in 2005 that you cannot take advantage of the Gujarat riots and it's a political पता नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं जी, 2004 में जब वहां सरकार बन गई यूपीए की जी, और लालू जी रेलवे मिनिस्टर थे, तो उन्होंने अपने स्पीच में चार्ज किया, हम थे रेलवे मिनिस्टर जिस समय ये हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने बहुत किया कि उसकी जांच नहीं कराई और कुछ भी हुआ। हमने कहा कि हमको अपनी स्थिति क्लैरिफाई करने का मौका मिलना चाहिए। एक दिन हाउस चला नहीं, अगले दिन हमको मौका मिला और हमने उसका पॉइंट वाइज रिबटल दिया। बट आपने ये कहा कि देखिए, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं? इसलिए मतलब नहीं है कि हम लोग ऐसे इश्यूज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, आपको मैं बता दूं। और अगर कॉम्प्रोमाइज करते तो 2005 का असेंबली का इलेक्शन, फरवरी का, नवंबर का इलेक्शन आपने देखा। सवाल है देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। अगर अटल जी की बात मान ली गई होती, जो राजधर्म की बात उन्होंने कही थी, तो आज 2004 में स्थिति कुछ और होती। इसलिए देखिए, इन बातों को किसी आदमी और किसी चीज को बताने के लिए, ये कोई जिसको कहते क्या है कि कोई आर्गुमेंट करने से फायदा नहीं। ये वैल्यूज की बात है, ये प्रिंसिपल्स की बात है, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी को गिवन सिचुएशन में अपने पोजीशन को तय करने का अधिकार है। हम लोगों ने ये तय किया कि नाउ नो लॉन्गर ये चीज नहीं चल सकती है। कंट्री के जो बेसिक मुद्दे हैं उससे लोगों का मन डाइवर्ट करेगा, लोग पोलराइज करेंगे। और सवाल सिर्फ इसका नहीं है, सवाल जो आज ग्रोथ की बात कही जा रही है, तो हम लोगों का कंसर्न वहां भी है, ग्रोथ का मॉडल क्या। मैं उस पर भी आ रहा हूँ। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं उस पर भी आ रहा हूँ, मगर लेट मी कंप्लीट दिस थिंग। आई हैव टू थिंग्स। एक है कि सोसाइटी में पोलराइज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा कुछ मत करिए, चाहे व्यक्ति से या पॉलिसी से, ये नहीं होना चाहिए देश में, और ये बहुत खराब होगा। नंबर 1, इस बात को समझ ले लोग। नंबर 2, जो ग्रोथ की बात की जा रही है, तो उसका मॉडल क्या होगा, ये बहुत साफ है। ये 2 बातें हम लोगों के दिमाग में है। और ग्रोथ का वो मॉडल जिसमें लोग पिछड़ जाते हैं, बैकवर्ड रीजन्स का क्या होगा। हम लोग ने सारी बातें की है। और सबसे बड़ी बात है डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। बट नीतीश जी, अभी आजकल क्या हो रहा है कि हर एक पार्टी दूसरे पार्टी को या तो सेक्युलरिज्म की सर्टिफिकेट दे रही है या फिर नहीं दे रही है। हर एक पार्टी एक दूसरे पार्टी को दे आर हैंडिंग देमसेल्व्स सर्टिफिकेट्स ऑफ सेक्युलरिज्म और सर्टिफिकेट्स ऑफ being a communal party, including the Congress party, with which you have a great friendship, a budding relationship nowadays. In May 2009, the Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, said, there is no doubt that Nitish Kumar professes, yani he claims to be a secular leader. But after yesterday, when I saw him share the dais with Narendra Modi, I have some questions in my mind. Yani ki in 2009 May, when the elections were going on, when you were against each other, the Congress party called you communal.
Now, in October 2010, the Congress spokesperson said, why did he not resign then? Asking Nitish Kumar, why did he not resign during the Gujarat riots? Actually, he's totally communal at heart. I have the quote. In other words, ahead of the first round of the Bihar Assembly elections, the Congress attacked you, calling you totally communal at heart. This is what the Congress party said. You responded very interestingly. You said, and this is an interesting quote, I'm surprised at the Prime Minister's comment. The Prime Minister of India should not try to become the Vice Chancellor of the University of Secularism. उसको मालूम था कि आप ये जरूर कहेंगे, क्योंकि अभी हाल में कुछ कहा है और उसके लिए मैंने उनको धन्यवाद दिया। तो मुझको लग रहा था कि आप जरूर इस बात को कहिएगा। जब आपने इतना ज़्यादा रिसर्च किया हुआ है, इसमें तो आपका कुछ जवाब है नहीं। लेकिन देखिए, जो बात आप कह रहे हैं, लुधियाना में अडवाणी जी प्रोजेक्टेड लीडर थे, उनकी इच्छा थी कि मैं भी रहूं। अकाली दल के लीडर हैं बादल साहब, उनकी इच्छा थी, हम चले गए वहां। बहुत सारी चीजें न चाहते हुए भी होती थी, जैसे लोगों का मान रखने के लिए। जो हम वहां गए लुधियाना में, जाना ही मेरी कोई इच्छा नहीं थी और मुझे कोई अच्छा नहीं लगा था जिस ढंग से चीजें रखी गई। तो ठीक है, साथ रहने का खामियाजा अच्छा नहीं लगा? और यही तो आज परेशानी। कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? आप समझ रहे, जितना रिसर्च किए तो आपको ये समझने में कोई कठिनाई हो रही है क्या? लुधियाना आप कोट कर रहे हैं, लुधियाना के बाद आप ये बात कर रहे हैं, तो उस बात को समझाने की कोई जरूरत नहीं। व्यूअर्स को तो नहीं पता है नीतीश जी की उसके पीछे क्या हुआ, और अब व्यूअर्स को तो ये भी पता नहीं है जो आपने रिसर्च किया हुआ है।